So all of you mute your mic. So let us start the session today. Today we are going to start new chapter, session number 1 of chapter number 11, construction. So इस chapter में तीन different types of construction हैं. One is division of line segment in particular given ratio, and the other second one is construction of similar triangle, and the third one is construction of tangent. सेकेंड वाला जो है इस एकेडमिक ईयर के लिए डिलीट हो चुका है, बट आई फील यू डू दैट वन ऑल्सो. उसके बाद एग्जाम के लिए भले प्रिपेयर नहीं करना. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, construction for the division of a line. Okay, so we are going to take one example. Draw a line segment 7 centimeter in length and divide it in the ratio 2:3. Okay, so we'll start the steps of construction. पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. मैं साथ में साइड में समझाते भी रहता हूँ. We will draw a line segment. Okay, 7 सेंटीमीटर. उसके बाद एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. दिस इज ए बी. Then we will draw one acute angle. This is an acute angle. Okay, and sum of ratio is 5. That is why we will divide ax, this is ax, into 5 equal parts. So let us start from this. 1 2 3 4 5. ठीक है, this is a1 and this is a2 and this is a3 and this is a4 and this is a5. उसके बाद we will join B to a5. ठीक है, a5 को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ B a5. एक रफ फिगर है ये, फिर उसके बाद मैं करके बताऊंगा. सो ज्वाइन B a5. ओके, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 तक ज्वाइन किए. उसके बाद B a5 को ज्वाइन किए. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इज 2. सो दैट इज वाई 2 से हम लोग को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन, व्हाट वी हैव टू डू, विद सेंटर a5 वी हैव टू ड्रॉ वन आर्क. एक आर्क ड्रॉ करना है यहाँ पर. ठीक है, और वही सेम रेडियस का आर्क इस सेंटर से करना है, a2 से ड्रॉ करेंगे. Now after that you have to measure this arc and you have to cut here from this to this. Then you have to join. जब join करेंगे तो m पॉइंट जो रहेगा वो डिवाइड करेगा AB को 2:3 रेशियो में. So construction ये समझ में तो आ गया ना क्या करना है सर. तो नीचे क्यों लिया सर, ऊपर नहीं ले सकते? ऊपर नहीं कर सकते हो. यूजुअली हम लोग नीचे साइड ही ड्रॉ करते हैं, ऊपर साइड भी कर सकते हो. सर A5 से सर्कल का रेडियस कितना है सर? वो आर्क बनाया ना सर. any convenient radius you can draw smaller also. छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो. Okay, we will draw a line AB is equals to 7 centimeter. Okay, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे, we have drawn one acute angle. Okay, draw. उसके बाद the sum of the ratio is 2:3. The sum of the ratio is 2:3. So what we will do, we have to divide the 5 equal parts. So let us start the division. So हम लोग कंपास यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए. a1, the next is a2, the next is a3. Okay, उसके बाद a4 and the last one is a5. After that we have to join B a5. Okay, so हम लोग ये दोनों को ज्वाइन करेंगे. राइट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A2 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. सो व्हाट वी विल डू, विद सेंटर A5 वी हैव टू ड्रॉ वन आर्क ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस. ओके, सो ड्रॉ कर रहे हैं और A2 से वही रेडियस का आर्क ड्रॉ करना है. फिर उसके बाद ये वाला मेजर करना है. मेजर करने के बाद सेम यही वाला आर्क यहाँ से हम लोग कट करेंगे. ओके, नाउ आफ्टर cutting this one,
After cutting this one, now what we have to do, we have to join these two. So when we will join these two, we will get a point M. So point M divides AB in the ratio 2:3. Any doubt? सर हम्म सर जैसे 2:3 है सर, तो A5 तक लिए सर, अभी 2:4 है तो A6 6 तक तक लेना लेना है है, सर। A6 तक लेना है। अगर 3:5 है तो 8 तक लेना है। सम ऑफ रेशियो जितना आ रहा है उतना इक्वल पार्ट्स करना है। ओके, ठीक है अगर सर, 3:4 है तो 7 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? क्लियर सर। Okay, fine. So now we are moving towards the next page, alternative method. अब मैं एक alternate method बता रहा हूँ, same question. One more alternate method is there. So ध्यान से देखो, that is also very interesting one. What we will do, we will draw a one line segment और एक acute angle draw करेंगे। ध्यान से देखो, मैं इसको एनिमेशन में करके भी दिखलाऊंगा। We will draw one acute angle, any convenient. You can draw 60 also. Okay, तो सेम यही वाला एंगल क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। We have to draw here same acute angle. अभी तो मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद the ratio is 2:3. So यहाँ पे 2 है तो 2 equal parts, 1 2. So this is A1 A2 and the second side is 3. सेम आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, तो ये B3 होगा। उसके बाद क्या करना है, A2 और B3 को ज्वाइन करना है। सो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा M. सो दिस इज द अनदर मेथड। सो आई विल शो यू दिस वन आल्सो। सो ध्यान से देखो ये वाला डायग्राम। फर्स्ट हम लोग AB को ज्वाइन किए 7 सेंटीमीटर, फिर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किए। यू कैन ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल एज पर योर कन्वीनियंट, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऑल्सो। द सेम एंगल यू हैव टू ड्रॉ हियर। जो एंगल यहाँ बना रहे हैं वो यहीं पे, यहाँ पे भी बनाना है। अब हम लोग का 2:3 है, तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स और यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स। अगर मान लो 3:2 रहता अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं और यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स। ये इक्वल पार्ट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो लास्ट वाले को फिर ज्वाइन करना है। ओके, सो ये वाला भी मैं, थोड़ा ध्यान से देखो। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ AB is equals to 7 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाना है। सो मैं 60 डिग्री बना रहा हूँ। 60 डिग्री विथ सेम रेडियस वी हैव टू कट। ओके, और यही वाला एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है 60 डिग्री। ओके, सो ये वाला ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर भी मिल गया। नाउ 2:3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स और इस साइड में 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2। नाउ फ्रॉम हियर 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 एंड वन मोर B3। ठीक है, B3 ज्वाइन करने के बाद हम लोग फिर लास्ट दोनों को ज्वाइन करेंगे, दैट इज A2 एंड B3। So this is B3. So B3 and A2 we have to join after that. So it will intersect the line AB at point M. So AM is to MB is equals to 2:3. Any doubt here? No, sir. Okay. So we'll continue with the another example. हम लोग एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज द सेम सिमिलर क्वेश्चन। सो विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। सो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स यू हैव टू डू? 13, right? So measure the two parts. So first of all we have to draw वन लाइन सेगमेंट AB। उसके बाद एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें 13 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना है। सो A1 A2 A3 अप टू A13 डिवाइड कर दिया। सो लास्ट जो पॉइंट है
वी हैव टू जॉइन टू बी, बी से ज्वाइन करना है। सर वो इक्वल पार्ट्स का लेंथ कोई भी कुछ भी हो सकता है सर? या कन्वीनियंट लेना है। यू कैन टेक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5। ओके ओके सो यहाँ तक किसी को डाउट है? जो लास्ट वाला पॉइंट है बी को ज्वाइन किए। अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इज 5, सो 5 से हम लोग को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से। सो क्या करेंगे, दोनों साइड दोनों आर्क ड्रॉ करेंगे विद सेंटर A13 एंड A5, सेम रेडियस के आर्क। सो ड्रॉ कर दिए, फिर इसको मेजर करके यहाँ से कट करेंगे। नाउ वी विल जॉइन दिस टू, it will intersect the line segment AB at point C। ओके सो क्या क्या किए देखो, सबसे पहले हम लोग AB इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर ड्रॉ किए, देन एक्यूट एंगल एक ड्रॉ किए, देन 13 इक्वल पार्ट्स हम लोग लोकेट किए यहाँ पर A1 A2 अप टू A13 such that A1 is equals to A1 A2 is equals to A2 A3 so on up to A12 A13। ओके उसके बाद हम लोग ये दोनों को ज्वाइन किए B A13 को, देन थ्रू A5 वी हैव ड्रॉन ऑन पैरेलल टू B A13 या A13B। ओके इंटरसेक्टिंग AB at point C। AC is to CB is the required ratio 5:8। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी विल ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर, फिर हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू कट हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, A13 13 total 13। so we'll start with A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 and A12 and last A13। so 13 होने के बाद what we have to do, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, we have to join A13 to B। ठीक है B और A13 को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर दिए। नाउ A13 और A5 पे दो आर्क ड्रॉ करना है हम लोग को। सो फर्स्ट आर्क, फिर यहाँ से सेकेंड आर्क, उसके बाद ये वाला आर्क मेजर कर रहे हैं, देखो ध्यान से, आर्क मेजर कर लिए एंड द सेम आर्क वी हैव टू कट फ्रॉम हियर। ओके उसके बाद फिर A5 से ज्वाइन करना है। सो इट विल इंटरसेक्ट AB at point M। so AM is to MB is the required ratio 5:8। any doubt? No sir। okay so now we will start the second question। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड 11.1 में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, एग्जाम के लिए छोड़ देना है वो, बट अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल of side 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। so लाइन सेगमेंट का जो रेशियो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, लाइन सेगमेंट में हम लोग सम ऑफ रेशियो ले रहे हैं, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ा है नंबर वही लेना है। तो 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3। सो 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अभी मान लो 4/5 है, सो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 5। अगर मान लो 7/3 है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 7। बड़ा नंबर देखना है, कहीं पर भी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एंड इफ सपोज वी हैव 5/7 देन 7। ओके अगर 5/3 है तो 5। गुड so we'll start with construct a triangle using BC is equals to 6 centimeter, AB is equals to 4 centimeter and AC is equals to 5 centimeter। इन तीनों का यूज करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सपोज मैं एक ट्राइंगल ऐसी रफली बना लिया हूँ, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ओके A B C।
उसके बाद आई हैव टू ड्रॉ वन एक्यूट एंगल यहाँ पर. नाउ just now we discussed that how many equal parts? Three equal Three parts. equal parts. 1, 2, 3. Okay, this is the rough figure only. अभी इसका फेयर करेंगे और फिर मैं एनिमेशन भी दिखलाऊंगा इसको. B1, B2, B3. और what is the denominator here? Denominator में क्या है? 3 sir. 3. तो Three. जो भी डिनोमिनेटर में है उसको C से ज्वाइन करना है. ज्वाइन कर दिए. और जो न्यूमरेटर में है वहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. सो यहाँ से जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है? दोनों आर्क ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से मेजर करके कट करना है. सो दिस विल इंटरसेक्ट BC एट C डैश, फिर यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. तो ये हो गया A डैश. सो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर मेजर करके यहाँ से कट करेंगे. ठीक है. So 3 equal points are marked on BX. This is BX. B1, B2, B3. Join B3C. अब फिगर देख लो. B1, B2, B3. B3 को ज्वाइन किए, फिर B2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए which intersect BC at C dash, and through C dash again parallel line is drawn which intersect AB at A dash. A dash B C dash is the required triangle. सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू ड्रॉ ट्राइंगल. ठीक है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ट्राइंगल. सो ड्रॉ BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फर्स्ट. उसके बाद 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बच गया. सो 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर रहे हैं विद सेंटर B. विद सेंटर C वी विल ड्रॉ 5 सेंटीमीटर. सो बोथ विल इंटरसेक्ट एट A. जॉइन AB एंड AC. सो हम लोग को ट्राइंगल मिल गया. ट्राइंगल मिलने के बाद मैंने कहा था कि यू हैव टू ड्रॉ, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ Three. एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल. सो ड्रॉ कर दिए. उसके बाद हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 3 equal parts. Three. B1, B2, B3. Then the denominator is 3, so we will join B3 to C. फिर हम लोग को B2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. सो एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से, फिर B2 से भी सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर ये मेजर करेंगे हम लोग, मेजर करके फिर यहाँ से कट करेंगे. देखो, नाउ जॉइन दिस 2 पॉइंट्स. सो वी गॉट द पैरेलल लाइन विच इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट C डैश. अगेन वी विल यूज द सेम प्रोसीजर. C से आर्क ड्रॉ करेंगे, द सेम आर्क वी विल ड्रॉ विद सेंटर C डैश, फिर ये वाला आर्क मेजर करके यहाँ से कट कर देंगे. देन जॉइन दिस 2 लाइन्स. सो विच इंटरसेक्ट AB एट A डैश. सो A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड triangle. Any doubt? No, sir. Okay. No sir. So now we'll move towards the last question of today's session. Okay. That is question number 3. Construct a triangle with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. Then another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. So how many equal parts we have to do here? 7. Seven. Okay, bada number 7 hai. Okay, so we'll start with the first. Draw a triangle with center, triangle with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे रफली बना लिए, एक कोई भी ऐसे. Okay, this is A, B and C. This is rough diagram only. So यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. How many equal parts? 7 equal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So ये B7 है. Now what is the denominator here? 5. So मैंने बताया था C को डिनोमिनेटर से ज्वाइन करना है. So B5 से ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन कर लिए. अभी न्यूमरेटर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. न्यूमरेटर में क्या है? 5. 7. न्यूमरेटर में 7 है.
7 से अगर हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बाहर की ओर जा रहा है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. So if you extend, it will intersect at C dash. Again you have to draw a parallel line parallel to CA, which will intersect the extended BA at A dash. So A dash B C dash is the required triangle. Okay, so अभी ये हम लोग फेयर कर लेते हैं. This one A B C is a triangle. एक्यूट एंगल ड्रॉ किए हैं, 7 इक्वल पार्ट्स. B5 को C से ज्वाइन किए हैं, राइट, और B7 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, फिर C डैश से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए. सो इट विल इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड लाइन BA एट पॉइंट A डैश. Okay, so we'll see the steps. A ray BX making an acute angle with BC is drawn opposite to vertex A. 7 points as B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7 are marked on BX, and points B5 is joined with C to draw B5C. B7C dash is drawn parallel to B5C, and C dash A dash is parallel to CA. ओके, स्टेप्स देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ट्राइंगल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द साइड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो 7 सेंटीमीटर हो गया. उसके बाद 5 सेंटीमीटर का रेडियस, फिर 6 सेंटीमीटर का रेडियस. बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट A. Okay, then we will join AB and AC. So we'll get the triangle. Triangle मिल गया. Now after getting the triangle, what we will do, we have to draw an acute angle CBX. Okay, now 7 equal parts. So we'll start with B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7. Okay, and then we will join. Next, what we will do, we will join B5 to C. उसके बाद हम लोग को B7 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो एक आर्क ड्रॉ करेंगे. द सेम रेडियस आर्क वी विल ड्रॉ फ्रॉम B7. फिर इसको मेजर करके यहाँ से कट करेंगे. कट कर दिए, फिर इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग. ज्वाइन करने के बाद BC को एक्सटेंड करेंगे तो वो दैट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट C डैश. नाउ थ्रू C डैश व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन. सो यहाँ से आर्क ड्रॉ किए विद सेम रेडियस, वी हैव ड्रॉन आर्क फ्रॉम हियर आल्सो. उसके बाद हम लोग ये आर्क को मेजर करेंगे. वी आर मेजरिंग द सेम आर्क, वी विल कट हियर, देन वी विल जॉइन C डैश टू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फिर से BA को एक्सटेंड करेंगे तो वो A डैश पे इंटरसेक्ट करेगा. सो A डैश B C dash is the required triangle. Okay, any doubt here? No, sir. Okay, so now this is the last question of today's session, and for this I have not kept any assignment question, right? So that's all for today's session. Thank you very much. Okay, किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में, आज के सेशन में? No, sir. You please watch once again this recording. Okay, I will upload after coming back from school. You please watch once again. Okay.